हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड स्टॉक्स में। इस वीडियो में हम लोग आईटीसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग खुद इन्वेस्टेड है आईटीसी शेयर्स में और हम लोग रेगुलरली यहाँ पे कवर करते रहते हैं। कोई न्यूज़ आता है या कुछ भी रिजल्ट्स आता है तो हम लोग यहाँ कवर करते रहते हैं। और आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा और जो सारे वीडियोस हमारे वो आपके पास भी जाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। आजकल आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आईटीसी बाईबैक करने वाली है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि आईटीसी सही में बाईबैक करने वाली है या नहीं करने वाली है, और या इनफैक्ट पॉसिबल भी है आईटीसी के बाईबैक करना या नहीं। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे भी लास्ट में कि आईटीसी करेगी या नहीं करेगी, मतलब हमें क्या लगता है बेसिकली। तो हम अपना व्यू उस पर देंगे। So let us look at the shareholding pattern in ITC. So starting with FIIs, that is foreign direct investors, they have something around 12.96% in stake in ITC. उसके अलावा है DIIs, that is direct institutional investors and government. So government के पास है something around 25 to 26% stake in ITC, which includes LIC, that is 16%, unit trust, that is 7%, general insurance, India insurance, ये सब government के अंदर आता है, जो कि है 25-26%. And अगर हम DIIs पूरा देखें, that is around 43% stake in ITC. So let us look at the public holdings, that is around 43.5%. So if you look at tobacco manufacturers India, Middletown Investment, Rothmans International, they have something around 29% stake in ITC, and these are BAT companies. So what is BAT? So BAT is basically British American Tobacco. It's a UK-based multinational firm which has around 29% stake in ITC. And so here, after seeing the data here of shareholding pattern, we come to a conclusion that government holds something around 25-26%, and BAT companies like Tobacco, Middletown, and Rothmans hold around 29% stake in ITC. So why are we telling you this? You will come to know about the importance of shareholding in the further slides as to will ITC be giving a buyback to its shareholders or no, because these are the stakeholders which have major stake in ITC. जैसे कि हमने देखा, BAT has something around 29% stake in ITC. So यहाँ पे they want to increase their stake to 51% from 1995. ताकि उनको ज्यादा कंट्रोल मिले, मैनेजमेंट में ज्यादा कंट्रोल मिले कि डिसीजन मेकिंग पावर पे, कि आईटीसी कौन सी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रही है, कौन सा एक्सपेंशन एरियाज चूज कर रही है, या जो भी पॉलिसीज फॉर्म कर रही है, दे वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन ऑल दैट. But ITC management is totally against raising their stake to 51%, because 51% stake हो गया तो they will be the major decision makers in ITC, which they don't want to make it happen. Because like अगर ऐसा हो गया तो BAT would be like stopping the diversification which ITC is doing into FMCG and other segments as well, apart from cigarettes, because BAT is only interested in the cigarette business, as cigarette business जो ITC का है वो highest contributing business है for ITC. So they just want to expand that particular business, and of course you know that BAT is a British American Tobacco. They would be only focusing on cigarette business as a whole. ऑल्सो आपको पता ही होगा कि आईटीसी के पास प्रमोटर्स भी नहीं है. लाइक इट्स होल एंड सोल कंपनी विच इज ड्रिवन बाय मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स which are there in the company. Apart from that, one more reason is the management is opposing the BAT entry to 51% is they would be getting royalty payments and dividends which will be going outside India, because BAT companies are mostly international companies, generally UK based or US based. तो जो भी डिविडेंड्स आईटीसी जनरल शेयर होल्डर्स को देती है, तो वो डिविडेंड्स इंडिया में तो रहेगा ही शेयर होल्डर्स के पास, बट दैट विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट. एंड अगर 51% स्टेक है तो उनको ज्यादा डिविडेंड जाएगा, एंड दैट विल बी आउटसाइड इंडिया. सो वो इंडिया के लिए एज अ इकोनॉमी विड ऑल्सो नॉट बी दैट गुड. सो दैट इज द रीजन कंपनीज अपोजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. Apart from that, government will lose all the income tax which the government is gaining from ITC sale of cigarettes and other FMCG or other segment के products जो है. So here government का भी loss होगा, economy का भी loss होगा. So ITC is also opposing UTI stake sale, because अगर UTI ने अपना stake share sell किया, which is around 7.93%, which they have it currently, तो वो पर्टिकुलर जो स्टेक है वो इधर पब्लिक शेयर होल्डर्स बाय आउट करेंगे, इधर म्यूचुअल फंड कंपनीज, और इट माइट इवन गो टू बैट. सो अभी जैसे आईटीसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर सारे पॉलिसीज एंड डिसीजन फॉर्म करती है, बीट फॉर देयर सिगरेट बिजनेस और बीट फॉर अदर सेगमेंट्स एज वेल, फिर बाद में एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाएगी उस पर्टिकुलर डिसीजन में, जो कि मैनेजमेंट को नहीं चाहिए. So ITC has around if you see 30,000 crores of cash, मतलब और इन्वेस्टमेंट में, मतलब
इनडायरेक्टली मतलब बैंक बैलेंस भी है। आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका, अगर आप देखेंगे तो अगर आप नॉन करंट एसेट्स में देखेंगे तो इनका इन्वेस्टमेंट अराउंड क्लोज टू 9,000 करोड़ का है। और अगर आप करंट एसेट्स में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी 15,000 करोड़ का है। फिर अगर आप देखेंगे बैंक बैलेंस देखेंगे तो वो भी 3,400 करोड़ का है। और अगर सबको अगर सम कर देते हैं तो क्लोज टू 30,000 करोड़ का इनके पास काइंड ऑफ कैश और इन्वेस्टमेंट है, जो ये बेसिकली काइंड ऑफ कैश तो डायरेक्टली दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो बेच के बेसिकली बाईबैक कर सकते हैं वो करना है तो। उनके पास बहुत सारा कैश है बाईबैक करने के लिए। बट तभी भी आईटीसी आज मतलब मैंने कभी देखा नहीं आईटीसी को बाईबैक करते हुए। टिपिकली आईटीसी को मैंने देखा डिविडेंड देते हुए, अब बाईबैक नहीं करते हुए। तो चलिए अब उसका रीजन जानते हैं कि क्यों एग्जैक्टली की बाईबैक क्यों नहीं करती आईटीसी। सो आप डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर आईटीसी बाईबैक करती है लेट से। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जैसे निधि ने पहले बताया था कि गवर्नमेंट के पास अराउंड 26% स्टेक है और बैट के पास अराउंड 29% स्टेक है। और बाईबैक जब होता है सबके पास ऑप्शन होता है। ऐसे बाईबैक एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली कंपनी जो है आपके शेयर्स आपसे बाई करती है, मतलब सारे इन्वेस्टर से बाई करती है। टिपिकली क्या होता है थोड़ा प्रीमियम पे करती है। जैसे आईटीसी का अगर आज प्राइस 180 है, हो सकता है उनका बाईबैक आएगा 220 पे, 230 पे, तो आप अपने शेयर दे सकते हैं आईटीसी को और उसके बदले में आपको उतना पैसा मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि बैट क्या होगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी बाईबैक में। अब आप सोच रहे हैं बैट क्यों नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती है, ये इसलिए क्योंकि देखिए बैट का जैसे मैंने बताया 29% स्टेक है। अगर बैट अगर पार्टिसिपेट नहीं करती है तो उनका स्टेक इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जो ये मैंने लाइन बोला है कि बैट का बेसिकली शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगा अगर वो बाई बैक में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। तो आप मान के चलिए कि आईटीसी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और इसमें 10 इन्वेस्टर है और सबके पास 10-10 शेयर्स है मान के चलिए। जैसे मैं एक इन्वेस्टर मान के चलिए मैं भी हूँ, एक निधि है, लेट्स से 2 ऑफ द इन्वेस्टर्स वी बोथ हैव लाइक 10 शेयर्स, और बैट के पास भी 10 शेयर्स है। अब मान के चलिए 100 में से 100 शेयर टोटल है। अब जो इसमें से 9 इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 90 शेयर्स है, वो लोग बेसिकली बाईबैक अपने शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स उनकी स्टेक होल्डिंग तो कम हो गई, राइट, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर्स दे दिए हैं। और बैट अपने शेयर्स दे ही नहीं रहा है क्योंकि बैट के पास 10 का 10 शेयर्स रहता है। तो इनडायरेक्टली आप देखिएगा तो क्या हुआ, बैट का शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, राइट। उनका अभी 10% था बट उन्होंने एक भी शेयर दिया नहीं, तो हो सकता है 11-12 कुछ परसेंट बढ़ जाएगा बाद में जाके। तो जो जैसे निधि ने पहले बताया कि मतलब आईटीसी की मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि बैट का शेयर होल्डिंग मतलब बढ़े इसमें, क्योंकि धीरे धीरे अगर बाईबैक चलिए एक पहली बार बाईबैक किया, हो सकता है 29-31 हो गया, अगली बार बाईबैक करेंगे 33 हो गया, तो 3-4 बाईबैक के बाद दे विल बी क्लोज टू लाइक 40-45, राइट। तो वो ज्यादा तो वो नहीं चाहते, वैसे आईटीसी मैनेजमेंट नहीं चाहती है कि उनका स्टेक होल्डिंग उतना ज्यादा बढ़े। तो ये एक मेन रीजन है कि आईटीसी बाईबैक नहीं कर पाती है। और एक और चीज है कि देखिए आप सोच रहे हो कि बैट डायरेक्टली स्टॉक्स क्यों नहीं बाय कर लेती है, मतलब पब्लिक से क्यों नहीं बाय कर लेती है। उसका रीजन ये है कि एफडीआई अलाउड इट नहीं है सिगरेट्स में, तो इसलिए बैट डायरेक्टली स्टॉक्स बाय भी नहीं कर सकती है। तो बैट के पास बस एक ही ऑप्शन है, अगर उनको शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाना है अपना, मतलब शेयर होल्डिंग जो उनका है तो उसको बढ़ाना एक ही ऑप्शन है कि बाईबैक हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो तो उनका शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और मतलब इसलिए आईटीसी आपने देखा होगा बस डिविडेंड देते रहती है, लाइक दे गिव वेरी हाई डिविडेंड। मतलब इस साल आई थिंक 10 रुपीज पर शेयर था, क्लोज टू 5% डिविडेंड यील्ड था, बट बाईबैक कभी नहीं करती है। और मैंने टीसीएस का एग्जांपल दिया था आपको, क्योंकि बाईबैक एक्चुअली अगर टैक्स के मामले में देखिएगा तो बाईबैक ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू डिविडेंड्स, क्योंकि डिविडेंड से आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और बाईबैक को उतना टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। तो बाईबैक ज्यादा फायदेमंद होता है टिपिकल इन्वेस्टर्स के लिए। बट हाँ आईटीसी ये फायदा पहुंचा नहीं पाई है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती है बैक के कारण यहाँ पे। तो ये एक मेन रीजन है मतलब आईटीसी का बाईबैक नहीं करने का। और मुझे लगता है इसी रीजन से थोड़ा टफ होगा फ्यूचर में भी आईटीसी को बाईबैक करना। और मतलब देखते हैं, मतलब मैंने सुना था मैनेजमेंट को कई मतलब एक इंटरव्यू में बोलते हुए बाईबैक के बारे में, तो उसके बाद से आगे कुछ न्यूज आया नहीं है, मतलब कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। तो हमारा व्यू ये है कि मतलब आईटीसी बाईबैक मतलब करना चाहे भी तो थोड़ा टफ होगा बैट के कारण उन्हें, क्योंकि बैट पार्टिसिपेट नहीं करेगी और इससे जो आईटीसी मैनेजमेंट बेसिकली वो चाहती नहीं है कि बैट का इंक्रीज हो। तो मुझे लगता है थोड़ा टफ होगा यहाँ। सो जैसे कि शिवम ने बताया, सो अकॉर्डिंग टू अस आईटीसी अगर चाहेगी भी बायबैक करने, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बायबैक बिकॉज बैट इज इन्वॉल्व विद देयर स्टेक्स इन आईटीसी। सो हमारे हिसाब से इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर आईटीसी डूइंग द बायबैक ऑफ शेयर्स। सो हमें आपके भी व्यूज जानने हैं, लाइक आप क्या सोचते हो कि आईटीसी बायबैक करेगी या नहीं, और इफ करेगी क्यों करेगी, एंड इफ नहीं करेगी देन क्यों करेगी। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो योर ओपिनियंस एज वेल। सो डू पोस्ट योर कमेंट्स बिलो इन द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और काफी इंसाइट्स मिले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, बैट कंपनीज एंड ऑल दैट,
तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय। बाय, थैंक यू।